So last class we have done in detail auditing and ethics. So last class as per syllabus, okay, nature, objectives and scope of audit, all the points we have covered. Then audit strategy, audit planning, audit program also we have covered. Risk assessment and internal control we have covered. Audit evidence also we have covered, we have done in detail. Also we did audit of items of financial statement. Then we were in audit documentation. So now we are in audit documentation. Okay. So essay 230 is audit documentation. Now our object is just like overall revision. In the process, this is audit documentation. As the name indicates, you have carried out the audit, you have done sincerely. So simply doing done, these are not important. What is more important, whether you have documented or not. Suppose you have done stock audit, right? So what you should do, finally one stock detail sheet should be with you, date when you have conducted, stock data, date, audit conducted, and if it is different between that, purchase and sale, stock increase decrease, reconciliation. Okay. Nowadays another important things coming nowadays, more perfect, snaps, photographs that you have carried out the audit. Now Google camera system is there. Now Google camera, nowadays when stock audit is carried out, nowadays there is system of recording. You have to attach that yes, I have gone, I have seen, I have checked with photographs. Then what happens? Authentic. Practical life, fraud can be anywhere. फ्रॉड कभी भी कहीं भी हो सकता है, ये समझे? तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सिमिलरली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, कंपनी के एसपीएल बैलेंस शीट, whatever you are doing, checked, compared, date wise, which date, what area you have covered. Okay. So audit team is there, works allocated, each team member is doing their work. Whatever work, there should be filing. And when the audit is complete, total things should be documented. One file should be prepared. Okay. And in the file, everything is recorded that you have carried out the audit. Okay. You have checked each and every area. All should be documented. And while writing the answer, audit documentation, if you write down essay 230, okay, while writing the answer, what you have to do, you have to use appropriate words. From detail essay 230, number of words will come that you have to take care of. Okay. Now you see, next is completion and review. Completion and review here, as the name indicates, completion. What completion? Audit completion. Review means things over, again go through, review it. So review, here what happens, things completed, again checked.
things completed, again checked. So completion and review. Here interesting is different essays are there, each essay having some content, word meaning that one has to elaborate. Essay 560, subsequent events. So here what the thing is, your year ending is 31st March, your year ending is 31st March, year ending 31st March, March over, event happened on 2nd April. Event happened on 2nd April. Now question is whether event happened on 2nd April will form part 31st March. Okay. So answer is no. Answer is, first answer is no. This will go under next year. But what happens? Again here word is, one is year ending, accounts preparation, accounts, then in company cases, year ending date, auditors signing date, ठीक है, होता है ना बैलेंस शीट साइन. So signing date, management signed, auditor signed, then you know AGM comes. These dates are after. Then what happens? We have to check whether it is material or not. If it is material, then before signing date, if something happened, it is material, then it can come under note. It can come under note. Can come under note. We are not adjusting in accounts, but we are adjusting in note. Then again AGM comes. Again something can happen between. In AGM can be discussed. Question comes whether we should adjust it with our accounts or no. First answer is no. But if it is a question of going concern, question of now essay 570, essay 570. Going concern meaning is whether your business will go on or no. Say 2nd April earthquake is there. 2nd April earthquake and your total factory comes to an end. Possible? No insurance. Question on going concern. Point is business closed. So going concern problem. If it is a going concern concept, going concern problem, means things becomes worse, then even adjustment in accounts is also allowed. Adjustment in accounts is allowed, that this happened and it's affected by going concern. Okay. What our object is? Users of financial statements must have means true and fair. Right? True and fair. So there if you don't disclose, then you are not disclosing properly. So that's why going concern if affected means business going to be closed, then we can adjust in our accounts even if it is after 31st March. Yes, samjhe? And by disclosing, this adjustment is after year ending. Clear? Again. Essay 260. Communication with those charged with governance.
सो कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। अब देखो ध्यान से, वर्ड मीनिंग कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, कंपनी को कौन चला रहा है? सो फर्स्ट लाइन कम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट व्हेन कंपनी चार्ज साइज बिग, तब क्या होता है? मैनेजर्स, सीईओ, ठीक है, सीएफओ, अलग अलग है, ये लोग सब चला रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, तो दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, ये लोग माने हम लोग क्या बोलते हैं? दे टेक डिसीजंस, they take decisions. So now as a auditor, your position is auditor, so auditor is communicating with them, auditor is communicating with them. तो ऑडिटर क्या करेगा? वो लोग के साथ कम्युनिकेट करेगा, चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। मीनिंग क्लियर? ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अब ऑडिटर उसके साथ कब कम्युनिकेट करता है? ऑडिटर को कुछ पूछना है, देन व्हाट हैपेंस? आंसर विल बी देयर। आंसर कौन देगा? आइदर दे हैव अपॉइंटेड समवन दैट कोऑपरेट विथ ऑडिटर, हो सकता है ना, ऑडिट में गए, बोल दिया आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर है कोऑपरेट करो, ठीक है। एंड सेकेंड इज, ऐसा कोई नहीं है तो डायरेक्ट मैनेजमेंट। एंड सम पॉइंट्स, डिसीजन मेकिंग केसेस, डिसीजन मेकिंग केसेस। सो डिसीजन मेकिंग केस इज विथ persons charged with governance. Now यहां पर ध्यान रखना है, auditor is not that whatever they do they will accept. Auditor can ask how, why. This answer management has to give, ठीक है। And suppose this type of answers given by persons appointed to look after, then you can say give me in writing, sign, stamped that this is management view. Okay, समझे? Sometimes a dispute is with them, dispute is with them, समझ गए? Then again that should be resolved. Again two things, resolved, not resolved. Resolved, case closed. Not resolved will come under note. नोट में आ जाएगा वो सब, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। 265, essay 265, communicating deficiency in internal control to those charged with governance and management. आप ऑडिट करने गए, इंटरनल कंट्रोल का चेक किए, इंटरनल कंट्रोल देख के आपको लगा कि देयर इज स्कोप दैट थिंग्स मे नॉट बी अंडर कंट्रोल, फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, लीकेजेस पॉसिबल। आप ऐसे सोचो, एक आप मार्केट में गए, ठीक है, नाउ शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में आप गए तो वहां पर देखते हो परचेज हुआ, सेल हुआ, बस माल लेके चले जाओ। आपको लगा देयर शुड बी वन एंड कंट्रोल, जब भी गेट से बाहर निकलेगा देयर शुड बी समवन टू चेक द गुड्स एंड बिल। गेट पॉसिबल?
अब वहां पर कंट्रोल नहीं है, तो हो सकता है सामान लिया निकल गया, बिल ही नहीं है, राइट। आप बोल सकते हो लीकेज, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। आप देखे सब कुछ ठीक था, माल हुआ, बिल हुआ, लास्ट में एक, ठीक है, बट देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स, ओके, उसका बिलिंग ही नहीं हुआ। 10 आइटम लिया, 2 आइटम का बिल कराया, माल लेके निकल गया, बिल पकड़ा दिया। तो गेटकीपर तो था, बिलिंग भी हुआ, लेकिन 10 आइटम था, 2 का बिल हुआ, 8 का बिल नहीं हुआ। इसको कैसे पकड़ोगे? इसको कैसे पकड़ोगे? तब दैट आंसर इज यू मस्ट हैव सम मोर कंट्रोल्स। मोर कंट्रोल्स कैसे होगा? सीसीटीवी, that is also part of control. So your CCTV should be installed in all over the store, all over the store. पूरे स्टोर में हर एंगल से सीसीटीवी होना चाहिए, ठीक है। आप देखें सीसीटीवी तो है लेकिन काम कुछ नहीं करता है, फिर गड़बड़ हो गया कंट्रोल। सीसीटीवी है, सब हो गया, लेकिन सीसीटीवी देखने वाला कोई नहीं है, पॉसिबल? सीसीटीवी लगाने से तो नहीं होगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए सामान गायब नहीं हो, गायब होने के बाद पकड़ाएगा, ये अच्छा है ना, गायब ही नहीं हो। गेट समझे? तो ये सब पॉइंट्स है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। फिर आप देखें सब तो ठीक है, फिर भी माल गायब है, पता चला स्टाफ पर कंट्रोल नहीं है। स्टाफ लोग जब मन बाहर जाता है, अंदर आता है, साथ में माल भी लेके गायब, पॉसिबल? क्लियर? तो कंट्रोल क्या होना चाहिए? वेदर स्टाफ और कस्टमर, वेदर स्टाफ और कस्टमर, सबका चेकिंग होगा, जो भी गेट से बाहर जाएगा उसका चेकिंग होगा, ठीक है। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरनल कंट्रोल इज फॉर आउटसाइडर और इनसाइडर। इंटरनल कंट्रोल का डिसीजन कौन लेगा? मालिक। आपका कहना है मालिक ही माल गायब कर देता है, तो उसको कंट्रोल का जरूरत क्या है? आप मालिक हो, आप अपना पैसा अपना लेके चले गए, आपका लॉस हुआ, आपका कैपिटल हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ? मेरा बात समझो, इंडिविजुअल में आप अकेला मालिक हो ना, कंपनी में तो चलेगा नहीं। और भी एक एग्जांपल है, आप गेट कीपर रख दिए, सबका चेक करो, बाद में पता चला जो गेट कीपर है वो खुद ही अंदर बाहर करता रहता है, पॉसिबल? पॉसिबल? तो देयर शुड बी कंट्रोल सिस्टम, दैट गेट कीपर का ड्यूटी है गेट में रहना, उसको स्टोर के अंदर का कोई रोल नहीं है, उसका काम है गेट में, उसको अंदर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई थिंक गॉट इट। इंटरनल कंट्रोल, बैंक में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट इज थ्रू 2-3 हैंड्स। 2-3 हैंड्स जब हो जाएगा तब क्या होता है? इट बिकम्स टफ। एक आदमी हाई रिस्क, 2 हाफ रिस्क, 4 हो गया, 1/4 हो गया, बल्कि उससे भी कम हो जाता है, बिकॉज अंटिल ऑल आर 1 you can't do fraud. Whatever system you do have, keep 100% safety security is not there. One word is insignificant risk.
दैट इज ऑलवेज विथ यू. ठीक है, 100% control is never possible. नॉट पॉसिबल. ठीक है, आप लोग देखते हो, माने दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन एनीवेयर. माने एनीवेयर, ए टू जेड. माने जितना भी सेफ्टी फीचर आप लगा लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है. ठीक है ना. दिस कंसेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर से एयरप्लेन्स, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेली चल रहा है, लेकिन साल में 2-4 एक्सीडेंट हो ही जाता है. राइट. ट्रेन जितना भी कंट्रोल कर लो, 2-4-5 हो ही जाता है. बस जितना भी कंट्रोल कर लो, पेनल्टी फाइन जितना लगा दो, तब भी न्यूज में आ ही जाता है एक्सीडेंट. So one word is insignificant risk. Similarly, control purpose, management, control, report deficiency, then also something happens. Okay. So if deficiency, what you can do? Communicate to management. Decision auditor will take or management will take? ऑडिटर का ड्यूटी है पॉइंट आउट करना. देन अगेन हेयर वर्ड इज एडिक्वेट कंट्रोल. ठीक है. व्हाट इज एडिक्वेट? सिचुएशन वाइज, केस टू केस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. ठीक है. और भी इसमें होता है कंट्रोल में, one person should not be appointed permanently for same purpose. एक ही आदमी एक काम कर रहा है और कभी छुट्टी भी नहीं लेता है, हॉलीडे भी नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है एकदम, then also question mark. He is managing something. So his role should be changed time to time. Department should be changed. दूसरा वहां आएगा तो क्या क्या डेफिशिएंसी है पकड़ में आएगा. Got it? But according to size, means volume, value, internal control should be there. ठीक है. चलिए. Again, while writing the answer, as I said, you have to remember essay. Okay. So if question is deficiency, internal control, you should say SSC 265. But if it is communication, those with charge with governance, then it is 260. So again, writing proper essay, content writing, something you can write down in your own also. Answer should be, essay should be correct. Your marks will be above 65-70. Otherwise, risk is your marks will not increase. Your general answer will not work. Your particular answer, specific answer, proper answer is only always if you quote essay, if you quote AS. If you quote some sections, then your answer is proper, your marks will go up. ठीक है. एकदम पूरा ऐसे जितना है, क्या है, लॉ का सेक्शन, इनकम टैक्स का सेक्शन के हिसाब से ऐसे कितना है, नथिंग इज देयर. ठीक है. समझ गए. सब मिला के 50. ठीक है ना. विद इन 50. प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम के पहले अपडेट कीजिए. प्रॉब्लम क्या है, एक दिन तो याद रखना है बस. एग्जाम खत्म, भूल जाइए उसको. ठीक है. ओके. चलिए अब देखिए क्या आया. ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट
तो ऑडिट रिपोर्ट, तो ये क्या है, फाइनल स्टेज में आ गया। ऑडिट रिपोर्ट इज एट फाइनल स्टेज, ठीक है। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो गया तो ऑडिटर को अपना एक ओपिनियन देना होता है। तो ओपिनियन व्हेन कम्स, इट कम्स 2-3 वैरायटीज, ठीक है। इट कम्स तो क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, qualified, unqualified, not using the word disqualified, qualified, unqualified। unqualified का मतलब सब ठीक है, qualified का मतलब adverse opinion, against, adverse opinion कोई बात है वो against में लिखा हुआ है। disclaimer of opinion, you are saying not in a position to comment, believed on others, but I have nothing to say in this regard, that is disclaimer of opinion, ठीक है। regard to financial statements, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है बिजनेस ठीक से चलाओ, ये करो वो, ये सब काम ऑडिटर का नहीं है, ठीक है। जो है उस पर उसको देना है, that is forming an opinion and reporting on financial statements, SA 700। क्या समझे? SA 701 types of modified opinion। Now modified opinion means you have given one opinion, you have given one opinion, later on you have changed your opinion। So changed your opinion, again it means earlier some opinion was given, now you have changed your opinion। ऐसा सोचो लास्ट ईयर आप ऑडिटर थे, इस ईयर फिर आप ऑडिटर हो, तो लास्ट ईयर जो ओपिनियन आप दिए थे इस साल अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक होता है कि इसी साल आप ओपिनियन दिए लेकिन बाद में फिर से अपना ओपिनियन चेंज कर दें। चेंज कब कैसे करेंगे? जो भी काम लिखने के पहले कर दिए तो मॉडिफाइड नहीं हुआ, वो तो नॉर्मल ओपिनियन हुआ। मॉडिफाइड के लिए फर्स्ट ओपिनियन होना चाहिए, बाद में मॉडिफाइड होगा। तब क्या होता है, जैसे एजीएम चल रहा है, एजीएम और आपके ऑडिटर में कुछ ओपिनियन है, एजीएम में आप अपना ओपिनियन को चेंज कर दिए थोड़ा, क्या इन द मीन टाइम पॉसिबल, तो वो हो गया मॉडिफाइड। बट टेक्निकली प्रॉब्लम है, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम है, बट मॉडिफाइड ओपिनियन पॉसिबल, ठीक है। बोलो, मॉडिफाइड ओपिनियन में जब भी कुछ होगा तो क्या था, मैटर क्या था, ओपिनियन क्या था, और आपका ओपिनियन मॉडिफाइड हुआ तो कौन सा ओपिनियन मॉडिफाइड हुआ, क्यों मॉडिफाइड हुआ, आपको पूरा डिटेल देना होगा, पूरा डिटेल देना होगा। तो जब डिटेल लिखोगे तो स्टेटमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, सब कुछ आएगा। और यूएम के अंदर डिफरेंस क्या है? कैम और यूएम के अंदर डिफरेंस नाउ जो भी आप मॉडिफाइड करोगे, जो भी वहां पर आपको देना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव मॉडिफाइड योर ओपिनियन। भले आप ऐसा रिपोर्ट दिए, बाद में ऐसा रिपोर्ट दिए, उसके कारण को बताना पड़ेगा, हाउ यू आर सेटिस्फाइड। समझ गए? चलो आगे। नेक्स्ट इज modification in the opinion in the independent auditor's report. This is similar to that types of modified opinion
and modification of the opinion in the independent auditor's report. So आजकल जो auditors report है that is itself independent auditors report लिखा रहता है auditors independent auditors report. Independent auditors report का मतलब होता है that auditor has given this report in his own view, अपने मन से, अपने आप से, ठीक है. अगेन, तो any modification, any change उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है. मॉडिफिकेशन, क्वेश्चन इज इन ऑडिट पॉसिबल और नॉट. आंसर इज पॉसिबल. सपोज you want to modify, you are auditor, you are saying I have already given my opinion, already published, everything over, now I want to change my opinion. Question is, can it be changed? So then SA 705 saying yes, auditor can modify opinion. Okay, I think meaning is clear. Then next is 706. So emphasis in the independent auditor's report. So emphasis in the independent auditor's report का मतलब हो गया जो भी ऑडिट होगा, ठीक है, whatever audit conducted, report finally. So one general perception is those who go through the independent audit report, from independent audit report they have a current position, belief, faith, and we give emphasis, माने importance to the independent auditor's report. So we are assuming whatever report given gives true and fair picture of the organization, okay, or about the client or SEC, whatever you say, their position. So we are give importance on independent auditor's report. SA 710 is comparative information. Comparative information here, comparison. What do you know? Suppose you are doing audit of a cement industry, possible cement company. Yes, sir. What you are doing, another cement company also you are doing, because their input, process, output is same. So their ratio and this ratio should be same. Expecting wherever ratios are different, we can have a question why. Suppose cement industry, cement line, one wages will be high, raw material will be high, then other is processing, okay, and GP ratio, NP ratio, each and every item percentage ratio will check, each and every item. Again, we can take sales as 100%, sales as, now further breakup, total breakup say 90%, so profit is 10%, possible. And each and every, one company 10%, other company 18%, then question will be why not 18, why it is 10, what happened to 8%, what happened to. So comparative information here interesting is practical life giving you idea. Say CA firm, audit assistants, articles going for audit. After audit is completed, then what happens? CA will sign the audit report. Before signing, auditor will ask,
with the articles, find the percentage. Find the, okay, comparative analysis do. One is horizontal, one is vertical. Horizontal, take another company and this company. Vertical, last year and this year, and compare the ratios. Compare the, wherever difference is, means substantial difference. Why? Why the difference is? That to be answered. If that is answered and logically answered, it's okay, fine. So this is also one very important. By this, if a person has done a major adjustment in anywhere, it will be caught. It will be caught. कहीं भी कोई मेजर एडजस्टमेंट अगर हुआ है तो वो पकड़ में आ जाए. समझ में आया केस? क्लियर? चलो आगे. So SS 710, what you have to do important is remember. चलिए again, branch audit. Best example is bank branches. Or number of times companies are there. Companies having branches. That audit is done. So branch audit means head office is there. Best example, you have conducted audit of the branch. Say if it is bank, then simply bank is coming under service industry. Bank is coming under, but if it is other than bank, say product, तो वहां पर क्या आ गया? गुड्स. दोनों में अंतर है. नेचर चेंजेस. बैंक में क्या होता है? लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट. बट व्हेन इट इज टू ब्रांच ऑफ प्रोडक्ट, तब क्या आ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, हेड ऑफिस गुड्स, लोकल गुड्स, स्टॉक वैल्यूएशन. So when you carry out the branch audit, now question is, head office auditor and branch auditor should be same or can be different? Different. Can be different. Head office auditor will believe on branch auditor. If head office auditor has doubt on branch auditors, can ask question or no? Branch auditor having doubt on head office auditor, can ask? ठीक है, ये अथॉरिटी हो गया. ओके, ब्रांच इज वन पार्ट. ब्रांच इज वन, माने सम पोर्शन हैज बीन गिवन टू यू फॉर ऑडिट, नॉट होल. एंड हेड ऑफिस व्हेन डूइंग इट इज एज अ होल. So while conducting branch audit, you write down you have done, carried out the audit of this branch. Got it? You are not concerned with other branches. Your audit, audit observation, audit report, branch profit and loss account, okay, should be linked with that particular branch only. Duty, responsibility, branch only. Clear? That branch previous auditor, you have to communicate. Suppose you have been appointed of a bank branch. So do you have to communicate who was the last auditor of the branch? Answer yes. Answer is yes. You have to communicate that I have been appointed. You have any objection? NOC लेना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है. एनओसी दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है. अब ध्यान रखना है, उसका कोई क्लेम नहीं होना चाहिए. उसका कोई माने ये नहीं कि क्लेम है. स्पेशली पॉइंट कम्स फीस. एंड while doing the audit, last year audit report, whatever audit observations are there, that you should go through properly.
and whether the branch has taken care of audit observations or not. उसको पूरा क्या हुआ, then again this year you can give your own audit observations. ठीक है. Here interesting is bank branch audit. If you are doing properly, doing full banking system, you will come to know. क्लियर. मन अगर आप ईमानदारी से अच्छा से मन लगा के ऑडिट करोगे तो आपको पूरा बैंकिंग का सिस्टम पता चल जाएगा. ठीक है. बिकॉज मोर और लेस ईच ब्रांच 80% ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस आर देयर. मे बी सम ब्रांच फॉरेक्स ट्रांजेक्शन इज नॉट देयर. तो आप ठीक है वो नहीं समझ पाए, लेकिन बाकी तो हुआ. लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, ये तो कॉमन है. ओके, आई थिंक गॉट इट. यस सर, बैंकिंग कंपनी में जो ऑडिट मतलब जो अकाउंट मतलब वो जो अकाउंट्स होता है तो वो तो सर एएस बाय ईएस के सबसे नहीं होता. तो उसका फिर से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक गवर्न बाय बैंकिंग. ठीक है. वो लोग का अपना सॉफ्टवेयर है, दे हैव देयर ओन. ठीक है. ऑडिट क्या है, आपको चेक करना है सब ठीक है कि ऐसे. ब्रांच ऑडिट में क्या, आपका ब्रांच का ऑडिट चेक करना है. वो लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करे उससे आपको क्या लेना देना है. इट्स वर्किंग, इट इज गिविंग क्लियर ट्रू रिजल्ट, पर्पज इज सॉल्व. सर ऑडिट नॉर्मल बैंक के लिए होता है, स्टेट बैंक के लिए सेपरेट. फिर से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग. ठीक है. अब ध्यान से, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना चलता है, उससे क्या लेना है हम लोग को, चलने दो. फिर से अकाउंटिंग बैंक का बैंक के हिसाब से मेंटेन करेगा, बैंक बैंक के हिसाब से मेंटेन करेगा. अब है आपका क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम कहां है. देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिस्प्यूट. हर ऑर्गेनाइजेशन अपना मेंटेन करता है. प्रॉब्लम कहां है आपको. इट इज फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट, इट इज फुलफिलिंग योर, एंड वेयर एवर सम डिस्प्यूट्स आर देयर, वेयर एवर सम. फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के ऑडिट में गए तो आप अकाउंटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, provision for doubtful debt in income tax it is disallowed, but for banking it is allowed. income tax में ही लिख दिया banking allowed as expense, only banking, others not allowed. जब हम लोग अकाउंटिंग में आते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर, इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है हम लोग का, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया. रिगार्डिंग ऑडिट, you are conducting audit as per provisions of the law, no problem. Okay, again, so branch audit, joint audit. joint audit में क्या है, more than one auditor doing same thing. organization very big, organization, तब क्या होता है, one auditor not sufficient, then more than one auditor is appointed. अब क्या है, काम एक ऑडिटर दो, something goes wrong, who is responsible? Problem. So what they do, auditor distribute the work between them. बोला काम तो बांट लिए, लेकिन ऑडिट जब रिपोर्ट देंगे वो तो एक देंगे ना, दो तो देंगे नहीं, राइट. सो व्हाट हैपेंस, बिटवीन देम अंडरस्टैंडिंग, between them, and because when something goes wrong, who is responsible? So when the work is distributed, automatically responsibility also distributed, duty also distributed. Okay, so
some portion they may do jointly, they may do some portion separately. Problem is some joint done, but difference of opinion possible. Difference of one is difference of opinion resolved, problem khatam. Other is not resolved. Then management comes. Again, resolved or not resolved? Resolved over not resolved. Give under report qualified. क्या करना होगा? ध्यान रखना है, ऑडिटर कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों ही ऑडिट कर रहा है, मैनेजमेंट का, ब्रांच का या हेड ऑफिस का, या मिलके कर रहा है कुछ भी. व्हाट माय पॉइंट? दोनों मिलके ऑडिट किसका कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का. तो मैनेजमेंट एंड ऑडिटर resolved, no problem. Dispute, what can you do? Note. आपके पास और कुछ नहीं, क्या कर सकते हो? फिर से आप ओपिनियन लो, एक्सपर्ट का ओपिनियन लो, लीगल ओपिनियन लो, सब कुछ कर सकते हो. आप बोले हम नोट लिखेंगे, मैनेजमेंट बोला लिखने से हम साइन नहीं करेंगे, फीस भी नहीं देंगे, जाओ. एनओसी तो बात का चीज है, आप लिखोगे तो हम लोग साइन नहीं करेंगे, और आप बोले ये तो रहेगा ही, साइन करो नहीं करो. इफ आई साइन आई विल राइट डाउन. पॉसिबल? तब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिटर में डिस्प्यूट हो गया, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर में. और जब डिस्प्यूट हो गया, अब क्या हो सकता है? ठीक है, एक है नोट लिख दिया, एक है नोट लिख दिया, समझ गए, और दोनों का साइन हो गया. डिस्प्यूट कुछ नहीं है, ये तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन है. मैनेजमेंट अपना एक्सप्लेनेशन देगा उसका, मैनेजमेंट विल गिव एक्सप्लेनेशन. ऑडिटर लिखा, ऑडिटर को जो समझ में आया, मैनेजमेंट उसको एक्सप्लेन कर दिया. आई थिंक गॉट इट. ठीक है, चलो अगेन नेक्स्ट इज कारो. नाउ कारो मेनली फुल फॉर्म अभी क्या है, रिसेंट में आया 2020, उसके पहले 15 था, 15 के पहले भी था. ठीक है, तो इन दिस नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, नंबर ऑफ, और पॉइंट वाइज आपको रिपोर्ट देना होता है, पॉइंट वाइज आपको रिपोर्ट देना पड़ता है. ठीक है, जैसे बैंक ऑडिट जो होता है ना, उसमें जिलानी कमिटी, जिलानी घोष कमिटी, इस तरह से कमिटी होता है. वो लोग क्या है, क्वेश्चनियर बना दिया है. क्या बना दिया है? क्वेश्चनियर में आपको जैसे पूछेगा, कैश वेरिफिकेशन डन, यस, डेट, was it adequate matching, yes, any difference, no, if yes बोलो. तो क्या किया, ऐसा क्वेश्चनियर बनाया कि बैंकिंग का पूरा सिस्टम उसमें आ जाए. पॉसिबल? आपका सब पॉइंट कवर्ड हो गया, ऑल पॉइंट्स कवर्ड हो गया. तो किसी को अगर जानना है तो पूरा अच्छा से देख लिया. आई थिंक गॉट इट. तो ये भी एक अच्छा टेक्निक है. सपोज यू वेंट फॉर ऑडिट,
यू वेंट फॉर ऑडिट। ठीक है, आप ऑडिट के लिए गए, तो ऑडिट में एज ए ऑडिटर आप एक प्लान बनाते हो, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट प्लानिंग प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ये भी एक अच्छा है। आप क्या करो, क्वेश्चन सेट कर लो ऑडिट में क्या क्या करना है। सपोज 50 क्वेश्चन आप रेडी कर लिए, ऑडिट खत्म हुआ, एक एक पॉइंट करके पूरा चेक कर लो। पॉसिबल? लास्ट में सभी पॉइंट का आंसर आ गया, आपके लिए ऑडिट आसान हो गया ना, कोई एरिया मिस नहीं करेगा। लेकिन आप कुछ बना ही नहीं, सीधा ऑडिट में पहुंच गए, साइन हो गया बैलेंस शीट, लास्ट में ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, केस समझे? तो बेस्ट होता है प्रिपेयर। क्लियर? चलो बोलो। और भरा हुआ है सर। हम कितना क्या लिखना बोले, है? कुछ नहीं है, एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट का आंसर देना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट का आंसर देना होगा। बहुत सारा क्लॉज होगा सर। होने दो, बोल तो रहे हैं 50, 100, 100, उससे ज्यादा नहीं है ना। जैसे मान लो फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन, ये सब स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर ना। आपको वो क्या है, एक एक आइटम, लेकिन क्या है, मीनिंग मालूम रहेगा सब। ठीक है, ठीक है, कारोबार पूरा डिटेल है, उसके अंदर में कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, कुछ है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्म वन क्वेश्चन, कंफर्म। देखो, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल। इसमें ध्यान से, आपका अगर नॉलेज, जनरल नॉलेज अबाउट सिनेमा आइडिया, सिनेमा हॉल आइडिया अगर है, तो आप ऑडिट। अब देखो, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल का मालिक है कोई? सिनेमा हॉल ओन और रेंटेड? आपका अपना हॉल है या भाड़ा में लिया हुआ है? सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी, मे बी बालकोनी, मे बी बिलो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये सब होता है ना, फ्रंट बैक, ये सब होता है, सबका रेट अलग होता है। टॉर्च से टिकट सब चेक करता है, सबका है नहीं है। ठीक है, चेकिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम। सिनेमा आया, देखा, चला गया, पकड़ेगा कैसे? व्हाट इट? ओके, स्क्रीन कितना 100 चल रहा है, 300 चल रहा है, 400 चल रहा है, 200 चल रहा है? पॉसिबल? सो फिर टिकट है, एडवर्टाइजमेंट, पॉसिबल? उसमें रेस्टोरेंट भी होता है, कुछ कैफे वगैरह भी होता है, पॉपकॉर्न सब बेचता है, उससे कुछ इनकम होता है, नहीं होता है? ठीक है, नाउ कंसेप्ट ऑफ आइनॉक्स एंड दिस ऑल आर देयर। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इन दिस वे नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, सब कुछ है। सो वन हैज टू टेक केयर ऑफ टिकट इनकम। फिर जो शो आता है, शो के लिए जो शो कैसे होता है, एक होता है रील का डब्बा आता है। ठीक है, रील का डब्बा आता है, प्रोजेक्टर से शो करता है। और आजकल फिर क्या है, आजकल नेट के थ्रू पिक्चर चलाता है, नेट के थ्रू पिक्चर चलाता है। परमिशन, अगेन डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स, प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर मे बी सम फिल्म यू हैव परचेज्ड, आप परचेज ही कर लिए,
8-10 फिल्म का परचेस कर लिए। कैसा परचेस किए? बोले इस स्टेट में मेरा चलेगा। कोई पुराना पिक्चर है, एक स्टेट के लिए आप उसको खरीदेंगे और अपने हॉल में तो फ्री में दिखाएंगे। फ्री में मतलब क्या? अपना पैसा नहीं लगेगा, पब्लिक से लेंगे और पूरा स्टेट में कहीं भी चलेगा तो आपसे 10,000 20,000 कमाएगा। क्लियर? तो ये सब ध्यान में रख के आपको ऑडिट करना है। सो ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल, ठीक है? सर सिनेमा हॉल, बैंक तो चलो हम लोग कर ही लिए, बहुत बार बैंक का नाम है, बैंक का, ठीक है? चलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या होगा? नेचर बदल गया तुरंत। हॉस्पिटल में क्या होता है? पेशेंट आता है। अब पेशेंट का कैटेगरी है, एक ओपीडी डिपार्टमेंट होता है, आउटसाइड आउटडोर वो लोग आया बाहर से, उसका रेट बहुत कम होता है, डॉक्टर ठीक है? फिर उसमें भी क्या होता है? फ्री ट्रीटमेंट होता है, कम रुपया लगता है, ज्यादा वाला लगता है, स्पेशलिस्ट लगता है, ठीक है? फिर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, चार्जेस, नर्सेस, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, ठीक है? फूड्स, सप्लाईज, मेडिसिन, मे बी दे हैव अ मेडिकल शॉप सेपरेटली, ठीक है? सप्लायर्स, ये सब होता है। तब क्या होगा? आप ये सबको ध्यान करके ऑडिट करोगे, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। नाउ सर अपोलो ग्रुप again regarding hospital, one is structure is organizational. So how it is working as a company, as a partnership firm, as a proprietor? If it is company, then local company law is applicable. If it is company, then company law is applicable. Then again, whether public, private, number of things are there. So in audit, everything we have to take care. Okay? सर If hospital has done some investment in somewhere, they will also get return. Hospital is company, company profit, they will declare dividend. So it's simply when you go for audit. So one particular type that nature attracts. Nature, hospital can have their own ambulance, driver, then petrol, maintenance, hospital maintenance, number of things are there. Fire system, CCTV is there, number of staffs, how they control, doctors, nurses, सर सब कुछ ये आएगा। जो सर मेडिकल कॉलेज जो होता है ना सर, Medical college is different than hospital. ये सर वही बोला। Medical college is different than hospital. Sir, इसका क्या- Then what happens? Medical college, when it comes to internship, then they are put in hospitals. Put in hospitals. Then there are some where college is also going on, internship is also going on, hospital is also running. That is structure. That is structure. पढ़ाई एक चीज है और फिर एप्लीकेशन वो तो हॉस्पिटल में होगा। सर हम पेशेंट्स आर देयर। बोलना चाहते हैं सर उसका हॉस्पिटल का ऑडिट अलग सर, कॉलेज का ऑडिट अलग से ऐसे फिर से आपका जब ऑडिट करते हो तो बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, प्रोपराइटर है, पार्टनर है, पूरा का ऑडिट होता है। दैट इज स्ट्रक्चर। डिवीजन हो सकता है, क्या हो सकता है? डिवीजन। ठीक है? एक साइड में कॉलेज है, एक साइड में हॉस्पिटल भी है, पॉसिबल वो सब। हॉस्पिटल में क्या है, पीडीएस क्लियर करना है, पीडीएस करता है। फिर से हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीनिंग डिफरेंट है,
प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट। सर गवर्नमेंट फिर क्या होता है, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, तो उसमें क्या रहता है, वो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट उसको एड देता है। चलो आगे। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑडिट का सीएनएजी करता है। गवर्नमेंट का कुछ भी रहेगा सीएनएजी होता है, वो लोग ही करते हैं, और स्पेशली बनाया हुआ है, ठीक है, सीएनएजी। अगेन, तो ऑडिट पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑडिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑडिट हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, क्लब्स, you do audit of clubs, then club meaning different, members, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, रेस्टोरेंट, ओके, स्पोर्ट्स, एनुअल फंक्शन, ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एरियर सब्सक्रिप्शन, बैटअप सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब कुछ चलेगा, ऑनरेरियम, सब कुछ रहेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अगेन, so different types of entities, audit of banks we have discussed lot. Then comes ethics, that is professional ethics, ethics and professional ethics में थोड़ा सा अंतर है, as we are in the line of profession, so what is covered under this one and what is ethics means intermediate ethics, final ethics, this is intermediate ethics, ठीक है। so इसके अंदर में डिटेल कम है, नथिंग इज देयर, थोड़ा बहुत, फाइनल डिटेल इन एथिक्स, ओके। अपडेट नेक्स्ट क्लास।